हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं तापसी पन्नू, जो दौड़ती हुई एकदम आ रही हैं रॉकेट बनकर, बिकॉज इनकी लेटेस्ट फिल्म है रश्मि रॉकेट। तो तापसी, मैंने आपकी फिल्म देखी, रात को पूरी रात बैठकर देखी एंड आई एम रियली बाउल्ड ओवर। और मैं गोवा में हूँ। तापसी, मुझे याद आती है आपकी पहली फिल्म डिश क्यों ढूंढ ढूंढ, बिकॉज आई लव्ड यू इन दैट एंड आई मस्ट से यू हैव कम अ लॉन्ग वे। खुद आप रश्मि रॉकेट Thank you. की तरह फ्रॉम चश्मे बद्दू टू रश्मि रॉकेट जर्नी, एंड I must say that you have really made a mark in the industry. तो अब मैं, क्योंकि गोवा में आपकी पहली फिल्म की मुझे याद आ गई, एक वैसे ही घर में रुका हुआ हूँ मैं जहाँ पे आपका पहली फिल्म शूट हुई थी। हाउ हैज बीन योर जर्नी? रॉकेट की तरह आप भी बॉलीवुड में छा गई हैं। एक्चुअली रॉकेट टाइप की ही लग रही है मुझे, थोड़ी सी जैसे स्टार्टिंग में इग्निशन पॉइंट पे आप थोड़ा सोच सोच के फूक फूक के कदम रखते हैं, एंड देन स्लोली यू गेट द मोमेंटम एंड देन यू शूट अप, एंड थैंकफुली whatever little bit of problem the rocket could face in between, I faced those, but it didn't stop me till now. तो अभी तक तो रॉकेट अभी अच्छे स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ रहा है. बट मैं कहूंगा कि आई थिंक एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिल्म है रश्मि रॉकेट, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ फिजिकल हार्ड वर्क एज एन एक्टर इन द फिल्म। एंड इट्स एक्टर भी एक पानी की तरह होता है, जिस ग्लास में डाल दो ढल जाता है। मतलब हसीन दिलरुबा आपकी लास्ट फिल्म और इस फिल्म में, बट इट्स वेरी फिजिकली चैलेंजिंग फिल्म, राइट? इट वाज अ वेरी Yeah, film. I yeah, think it was. you had to work really hard on a lot of aspects. Was that the case? Yeah, it is by far the most difficult film for me to do, physically and mentally both, because yeah, physicality jo hai wo, it was relatively new for people to see me in that kind of a look. But if you see the kind of mental stress this character goes through of being referred to not as a woman and trying to like somewhere prove that she's a woman, and to fight that battle to say that please let me be the woman. So that is a uh, which is not seen physically, but it is very much equally stressful, if not more. Any difficult scene? Because I think a climax scene जो है आपका, which is a very turning point, and if viewers will watch the films on Z5 will understand, because शुरू से अंत तक फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। मुश्किल scenes कौन से थे? Because आपको एक range of emotions you had to portray as an actress. uh, Mushkil scenes physically, of course, the race sequences, because I was running with international standard athletes there. So I had to make sure I looked the part. But mentally, yeah, the climax sequence is what, that was one sequence that triggered me when because of which I said yes to doing the film. And that was one scene I was waiting to do. I think I was most of my films which have that kind of a sequence closer towards the climax, I mentally prepare myself almost every day when I start shooting that film, that there will that for that one day I'm going to go and do that shoot. So the same was for this. I was waiting to perform in that sequence, that particular sequence, which for me was the heart of the film. So yeah, so that is the most beautiful as well as the most challenging sequence for me in the film. If I'm not wrong, I think makeup बिल्कुल use ही नहीं किया है आपने, because it's a absolutely no makeup, very brazen look. As an actress, it's a challenge. हाँ, बिना makeup के आप एकदम, it's a totally like a de-glam look, the so-called stereotypical look. Yeah, I had to actually tone my skin down a little bit because I was playing a Kutch girl who is the guide, a trek guide. So she's exposed to a lot of harsh sun in her area. So I end up I still have a little more cleaner or a little more little lighter skin than a lot of girls who will be exposed to sun more because of the kind of work they do, who are actual athletes or who are actual tour guides in that kind of a sun. So that's why I had a slightly more toned down skin color. The color of my skin is very different, but other than that, there was no other makeup because the character was such. I couldn't really have any makeup. We kept the the tattoo look and all because of the area she was from, but beyond that, it was not the character who really believed in dressing up, apart from that one Mahotsav song that you'll see her in. Yes.
Also, when I look at any cinema, you know, I look at the visual beauty of the films as well. अब पिछली फिल्म में आपने मेरे होम टाउन हरिद्वार दिखाया, और इस फिल्म में I see a lot of beautiful गुजरात, रन ऑफ कच्छ एंड झारखंड के एक बड़े Mm. beautiful locations मुझे दिखाई दिए. So any memories of the places you had shot the film? आई थिंक ब्यूटिफुल भुज, मतलब वो वाइट सैंड्स जो थे वहां के, मतलब दिल ले लेने वाला विजुअल था. बिकॉज आई रिमेम्बर वी शॉट इट ऑल्सो इन लाइक पीक विंटर्स, but once the sun was out, it didn't feel like it was winter there. But in the moment the sun used to set, it was chilly. It's very chilly there. It was the best time to visit Run, and that was a time where there were a lot of like tourism and all was pretty much active there. So there were very beautiful colors to see around. Beautiful. And the other side was Jharkhand. And I must say the kind of crisis that we shot the film in, we were in middle of pandemic in between two lockdowns. The Jharkhand government was so supportive to help us get that stadium. We couldn't get any other stadium, and we wanted a stadium which will have like international standard. Very few stadiums of such sort are there in the country, and most of them were converted into COVID facilities when we were shooting for this particular sequence. So it was very, very challenging to get a stadium. So thanks to the government of Jharkhand who helped us get that beautiful stadium where we could shoot our major races, and it looks so good. So it was very comfortable to shoot there, and I got to travel to all these places I've never been to. I've never been to Ranchi before. I've never been to Bhuj before. I did insane amount of shopping in Bhuj. I in my new apartment I have a lot of things that I have picked up from there. So it'll forever stay around me. तापसी, आई थिंक एक अच्छी बात अभी आजकल जो हो गई है कि कि अब रोल्स एक्टर्स को ध्यान में रख के अपने आप ऑटोमेटिक, आई मीन यू हैव कार्व्ड सच अ नीश कि आज जब रोल होते हैं तो लगता है कि हाँ ये तापसी के लिए बना हुआ है, और कहीं ना कहीं यू हैव कार्व्ड दैट स्मॉल निश, जो मैंने बोला कि आपने एक मतलब जैसे रोल को मतलब आई आई जस्ट दैट रोल जो आपका ये है मतलब एब्सोल्युटली सूटेड. सो समवेयर आई थिंक आपने जैसे अपने करियर की शुरुआत की, आपने एक नीश बना ली है. अभी रोल्स ऐसा लगता है कि आपके लिए रोल आपके लिए बने या आप रोल्स के लिए बनी है. तो डेलिबरेटली सोचा था कि मैं ऐसी इतनी एक अभी तापसी पन्नू ने अपना एक एज एन एक्ट्रेस यू हैव क्रिएटेड अ निश. एक टाइम था कि हीरोइंस को केवल एक ग्लैमर ऑब्जेक्ट से रुककर आजकल की हीरोइंस, आई मस्ट से समय बदल गया है, एंड आई थिंक यू आर द वंस हु जी. चेंज. व्हाट डू यू हैव टू से टू दिस? दैट इज ट्रू. समय तो डेफिनेटली काफी बदला है. मैंने खुद ही जब 10 साल पहले 11 साल पहले काम करना शुरू किया था, अगर उस समय मुझसे पूछा जाता था जब कि आप 5 साल में 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो मैंने ऑनेस्टली अपने इंटरव्यूज में बोला है कि हाँ उसके बाद तो मतलब काम नहीं मिलेगा 10 साल बाद. उसके बाद यूजुअली शेल्फ लाइफ होती है हीरोइन की. मैं फिर कुछ और प्रोफेशन में चली जाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी. मैंने एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड ये सब बोला है, क्योंकि नहीं कोई एग्जाम्पल ही बहुत रेयर होते थे. वन इन सम 50-60 एक्ट्रेसेस ऐसी होती थी जो 10 साल से बियॉन्ड चलती थी उस टाइम पे. 10-11 साल पहले, अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है. बट ये 10-11 साल में मैंने अपनी आंखों के सामने चीजें इतनी ज्यादा चेंज होती देखी हैं कि अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आप कितनी देर तक इस इंडस्ट्री में आपको लगता है रहेंगी, तो मेरे पास उसका कोई डेफिनेट आंसर है नहीं अब. क्योंकि हर उम्र की हर तरह की लड़की के लिए आज एक रोल है, एक कहानी है. तो आप नहीं कह सकते कि आपका जब तक आप अच्छी पिक्चरें चूज कर रही हैं तब तक आप इंडस्ट्री में रह सकती हैं. आपकी उम्र, आपका साइज, आपकी लुक नहीं डिसाइड करेगी कि आपकी कितनी लॉन्जिविटी है इस इंडस्ट्री के अंदर अब एनीमोर. वो क्रेडिट जाता है काफी. मैं सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे को लगता है मेरे अलावा बहुत सारी लड़कियां मेरी कंटेम्प्रेरीज जो हैं जिन्होंने इस तरह की मूवीज पिक करी हैं, जो हमेशा चैलेंज करती है कि कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ थोड़ा सा और पुश करते हैं एनवलप को, कुछ नया दिखाते हैं. कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती, पर अगर एक भी पिक्चर चलती है किसी लड़की की, उसकी वजह से 10 और लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस तरह की पिक्चर करने की. तो उसी होप से हम लोग पिक्चरें कर रहे हैं अभी, ताकि आगे हमारे हमारे होते हुए शायद इक्वालिटी एकदम अचीव ना हो, बिल्कुल इक्वल ना हो पाए, बट एटलीस्ट जो अगली आने वाली जनरेशन है वो इक्वालिटी देख पाएगी अगर हम गिव अप ना करें अभी तो. So, जब do we see a creative side of you? Do we see you as a director, producer? You so many things. We always, you surprise us. तो या आगे आई हैव टर्न्ड अ प्रोड्यूसर ऑलरेडी, तो मैं yes, you डायरेक्टर तो are. नहीं कर सकती. डायरेक्शन का है कभी ख्याल कुछ, और किस तरह नहीं, का प्रोड्यूस करना चाहती हैं, मतलब एज अ प्रोड्यूसर व्हाट आर योर प्लान्स?
मेरे प्रोडक्शन के अंदर आपको वही तरह का कंटेंट दिखेगा जिस तरह का कंटेंट आपको मैं एज एन एक्टर लेके आती हूँ आपके लिए। तो मैं कोई भी उस तरह की पिक्चर प्रोड्यूस नहीं करूंगी जिसको मैं नहीं देखूंगी एज एन ऑडियंस, क्योंकि मैं वही पिक्चरें करती हूँ एज एन एक्टर जिसको मैं देख सकती हूँ खुद एज एन ऑडियंस। जो पिक्चरें मैं खुद ही नहीं देखूंगी, मैं वो ना एक्ट करूंगी उनमें, ना उनको प्रोड्यूस करूंगी। सो ये मेरी डेफिनेशन जो मेरी प्रोजेक्ट चूज करने की है वो सेम रहेगी, चाहे एज एन एक्टर चाहे एज ए प्रोड्यूसर। तो उम्मीद करता हूँ कि रश्मि रॉकेट बहुत तेजी से दौड़े। गाइस, इट्स अ वेरी थैंक यू। फिल्म, प्लीज वॉच इट। तापसी ने एक बार फिर से चौंका दिया है, हर बार चौंकाती है। तो आई एम श्योर आने वाले प्रोजेक्ट्स में यू गोना बी सरप्राइजिंग अस मोर। लुकिंग फॉरवर्ड, ऑलवेज लव योर वर्क एंड कीप ऑन थैंक यू। डूइंग द गुड वर्क तापसी। सच अ प्लेजर टू टॉक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक गुड यू। बाय, गुड बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।